चल गया। कल ही मैं अभी फॉलोअप ले लेती हूँ, मैंने सारे कर दिया है, अब देख लेती हूँ, टेक्नीशियन टीम को बोल दूंगी, मेरी साइड से चला गया। बेटा इन लोग गिलमर में आई डोंट नो द सिस्टम हाउ इट वर्क्स। व्हाट्सएप चैनल आई ठीक है। तो व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूँ, चलिए ठीक है। आर वी अलाइव लाइक पीपल सिटिंग ऑनलाइन, कैन somebody tell me am I audible and clear? People sitting online can tell me am I audible and clear please? People sitting online can tell me am I audible and clear? Live? Live? Yes. Good morning. Hi Rishi, thank you so much for joining in. Good morning everyone. We'll start in few minutes. We are waiting for the people to join in and then we'll start. Thank you Rishi for joining in live. Thank you so much for confirming as well. We'll start in 2 minutes. Yeah. Today we'll be starting off with the contingent and quasi contract. We'll be starting with contingent and quasi contract. We'll wait for 2 minutes and then we'll start. Yeah. Contingent and quasi contract. Tomorrow we'll be dealing with, I think we'll be dealing with the extended part of contract. And then we'll go ahead with the agency bailment and then we'll start SOGA. Hi Mitali, good morning. We'll wait for 2 minutes. I'm just connecting my writing pad and we'll start the session. Yeah. Thank you. Chale. People started writing grateful journal, practicing gratefulness. People started doing that. Huh? Regular basis pe good. You did? Chale. Okay then. Abhay, you started doing gratitude journal. Okay. इस न्यू ईयर पे अपने लिए ग्रेटफुल जर्नल ले लेना, ऑनलाइन मिलता है, तो यू कैन सी ग्रेटफुल जर्नल ऑनलाइन, यू कैन बाय वन ऑफ द ब्रांड्स दैट आई यूज इज माइंडसेट करके एक ब्रांड है, वो अच्छा देता है ग्रेटिट्यूड जर्नल। चले ओके, सो वील स्टार्ट विद द कॉन्टिजेंट एंड quasi कॉन्ट्रैक्ट टुडे। इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें से वी हैव क्वेश्चंस इन द सी फाउंडेशन एज वेल। नाउ with respect to 3 dimensions of contingent and quasi contract, with respect to 3 dimensions of contingent and quasi contract, we'll be dealing with these three segments. One is rules relating to enforcement of contingent contract. So basically we'll understand the contract act rules. जो भी एक्ट में लिखा है उसके हम लोग रूल्स को समझेंगे, ठीक है। सेकेंड विल बी अंडरस्टैंडिंग कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है इन द आईज ऑफ लॉ, in the eyes of law. So we'll be understanding the difference between them and what are the cases in which quasi contract can be deemed. So basically we'll understand these 3 segments and then we'll go ahead with the further topics. Chale. Now coming up to contingent contract. So can somebody tell me by the name, नाम से तुम लोग को क्या लगता है contingent contract क्या होता है? Okay, great, good. Kabir? No? You? Same? Okay. What's your name? I think Mehak. Okay. You? Same. अच्छा. So people are like, कुछ दूसरा बता दो, अब सुन के क्या लगता है? What is contingent? अब है? No? Okay. So basically, I'll tell you when it comes to section number 31. By the way, time and place of performance का section क्या था? Good.
गुड, 50 नहीं 51, हाँ। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का तो क्या था? तो 59 से 61 क्या था? रेशियो ऑफ पेमेंट। फ्रॉड का वो क्या था हमारा? अनड्यू इन्फ्लुएंस के 19 है में वो अफेक्ट है, बट उसका निमोनिक्स क्या लर्न किया था हमने? पा। ठीक है। अच्छा, वो क्या था? मॉब पी स्क्वायर, सॉरी एल आर, मॉब पी फोर एफ स्क्वायर एल आर, किसके? मॉब पी फोर एफ स्क्वायर एल आर क्या था? डिस्चार्ज ऑफ एग्रीमेंट। डिस्चार्ज ऑफ एग्रीमेंट का क्या था? ये निमोनिक्स। ठीक है, चले अब बात करते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। प्लीज अंडरस्टैंड अ कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप का हो सकता है, कुछ करने के लिए भी हो सकता है और कुछ ना करने के लिए भी। ना करने की कोई एग्जांपल बता सकता है? एग्जैक्टली सूट ना फाइल करना। अगर हम आपने ये कर दिया तो मैंने आपके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं करूंगा। सो कॉन्ट्रैक्ट टू डू or not to do something if some event collateral to such event does or does not happen. ये तो धमकाना हो गया। हाँ हाँ। हम्म हम्म हम्म। एग्जैक्टली राइट, दिस कैन बी एन एग्जाम्पल। तो बेसिकली कुछ करना या ना करना, कुछ इवेंट के ना होने या होने पर। ठीक है। कंटीजेंट मतलब डिपेंडेंट ऑन द कंडीशन, डिपेंडेंट ऑन द कंडीशन। ऑल इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है? गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स, इंश्योरेंस। अच्छा गारंटी, तुम लोग अपन लोग फोन लेते हैं या हेडफोन्स लेते हैं या एयरपॉड्स लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? वारंटी। अगर खराब होगा तो इसकी वारंटी कंपनी इस टाइम पर देगी, बट उसकी कंडीशन क्या है? कि वो खराब हो। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ इंश्योरेंस होता है, कब मिलता है? मरने के बाद। मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, कब मिलता है? जब कोई मेडिकल हो गया हो, जब कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है। तो बेसिकली व्हेन समथिंग इज डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है। सेक्शन क्या है? 31। चलो एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी रुपीज 10,000 इफ बीज हाउस इज बर्न्ड। मैंने अभय को पैसे दिए 10,000, ये बोल के दिए, क्या हुआ? हम दोनों ही है इसमें। ठीक है, चलो ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी रुपीज 10,000। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया तुमसे कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा अगर तुम्हारा घर जल गया तो, या तुम उल्टा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज अ contingent contract. Here burning of B's house is neither a performance promised as a part of contract nor it is a consideration. The liability of A arises only when the event has been happened. तो event क्या है? कि B's house is burned. क्या है? B's house is burned. क्लियर है? चलें, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर। प्लीज अंडरस्टैंड असेंशियल्स ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या असेंशियल्स है? गाइज हु हैव जॉइंड अभी, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अ ब्रीफ कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, क्या क्या पढ़ लिया। ठीक है, पहले हमने देखा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो बेसिकली कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मींस कि कुछ होना या ना होने पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होना। राइट, कुछ होना या ना होने पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होना, तो इसको क्या बोलते हैं? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन क्या है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन क्या है? कोई मेरे को 30 बता पाएगा क्या है? बताओ, पढ़ा है हमने।
यप, यस, गुड। बताओ क्यों? अच्छा ठीक है, चलिए अब हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का था 31। अब हम पढ़ेंगे इसके एसेंशियल्स। एसेंशियल्स क्या है? देयर शुड बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ कंटीजेंसी, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ इवेंट होना चाहिए जो होगा या नहीं होगे पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो देखो, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट इन फ्यूचर। तो एग्जांपल समझना, A promises to pay rupees 5,000 to B if rain on the first of the next month। तो रेन क्या है? एक कंटीजेंसी है। रेन क्या है? एक कंटीजेंसी है। तो होना या ना होने पे जो हमारा डिपेंडेंट रहता है उसे कंटीजेंसी बोलते हैं। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंटीजेंसी होना जरूरी है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ कंटीजेंसी। सेकेंड, अब कंटीजेंसी मस्ट बी अनसर्टेन। अगर सर्टेन हो गई तो वो कंटीजेंसी क्या काहे की रही? सर्टेन मतलब होना या ना होना। रेन हो भी सकती है, ना भी हो। बी अपना हाउस बर्न कर भी सकता है, ना करे। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? अनसर्टेनिटी रहनी चाहिए। हो गया तो ऐसा होगा, नहीं हुआ तो ऐसा होगा। तो इट इज अनसर्टेन। क्या बोल रहे हैं हम लोग? इट इज uncertain। ठीक है, now event must be collateral to the contract। the event should be neither performance promised or consideration। मतलब collateral मतलब अगर ऐसा हो गया तो हम करेंगे, प्रॉमिस नहीं किया हमने कि ऐसा होना ही है, अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा। इट इज कोलेट्रल। इट इज कोलेट्रल मतलब सब्जेक्ट टू। आपने कोलेट्रल बेसिस पे कुछ रखा, अगर होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो पहला कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंपॉर्टेंट क्या है? कंटीजेंसी होना चाहिए। दूसरा, वो जो कंटीजेंसी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अनसर्टेन। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और अनसर्टेनिटी के बाद क्या होना चाहिए? कोलैटरल। अनसर्टेनिटी के बाद क्या होना चाहिए? कोलैटरल। अब देखना, द कंटीजेंट इवेंट शुड नॉट बी अ मियर विल ऑफ द प्रोमिसर। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ विलिंगनेस ऑफ प्रोमिसर ही हो। उस जो इवेंट है वो उस चीज, देखो अगर मान लो विलिंगनेस के हिसाब से, प्रोमिसर की विलिंगनेस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है क्या? मतलब फॉर एग्जांपल मेरे और अभय में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अभय अगर महीने के December 1 को रेन हो गई तो मैं तेरे को 10,000 रुपीज दूंगा। अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन पहले ही है कि रेन नहीं होगी तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कहीं से तक? क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है सब, मैं वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, मुझे पता है December 1 को रेन नहीं होगी। बेट, एग्जैक्टली, हाँ ये तो बेट हो जाती है। यस, ये बेट ही है। अगर हो गया तो फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, कंटीजेंट इवेंट शुड नॉट बी अ मियर विल ऑफ प्रोमिसर। सिर्फ प्रोमिसर की विल पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना होना चाहिए। क्या बोल रहा है ये सिर्फ प्रोमिसर की विल पे कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ नहीं होना चाहिए। चलो पहले मुझे बताओ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन क्या है? 31। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंडेंट है? एक इवेंट पर। क्या डिपेंडेंट है? इवेंट पर। ठीक है, अब बात करते हैं उसके एसेंशियल्स की। तो C² याद रखना, C² है, 2 C है इसमें। ठीक है, C² है। पहला, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होनी चाहिए? एग्जिस्टेंस ऑफ कंटीजेंसी। ठीक है, फिर वो जो एग्जिस्टेंस ऑफ कंटीजेंसी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? अनसर्टेन। अनसर्टेनिटी के बाद क्या वो मियर विल ऑफ प्रोमिसर प्रोमिसी पे रह सकती है क्या? नहीं, तो मियर विल ऑफ प्रोमिसर पे नहीं रह सकती। और कोलैटरल कुछ रखा होना चाहिए। इट द रिलेशनशिप इज अ कोलैटरल वन। ठीक है, सॉर्टेड। चले अब रूल्स रिगार्डिंग कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। रूल्स रिगार्डिंग कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट्स कंटीजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ अ इवेंट। अब पढ़ना सेक्शन 32। Section 32 provides that the contingent contracts to do or not to do anything if any uncertain future। ये 2 वर्ड याद रखना। एक तो अनसर्टेन है कि रेन होगी कि नहीं होगी, और कब है?
फ्यूचर में है। तो कब है? तो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट क्या है? एक तो अनसर्टेन है, दूसरा क्या है? फ्यूचर में होगा, और ये एक इवेंट है। इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल दैट इवेंट हैज हैपेंड। ये अब तुम्हारा क्वेश्चन था, जैसे ही वो इवेंट हो जाएगा तो आप एनफोर्स कर सकते हो, बट उस अनसर्टिनिटी के कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स नहीं कर सकते। अगर इवेंट इम्पॉसिबल हो गया तो वॉइड हो जाएगा। तो देखो समझो, दो चीज हो सकती है। रेन का कॉन्ट्रैक्ट किया है, रेन हो गई तो क्या हो जाएगा? एनफोर्सिएबल। रेन नहीं हुई, ठीक है, ये कहां लिखा है? 32 में, ठीक है। द प्रोमिसर विल नॉट बी लायबल टू परफॉर्म द प्रॉमिस until the event has happened। चलिए एग्जाम्पल समझिएगा। रवि कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे नितिन अ सम ऑफ मनी व्हेन नितिन मैरीज अनीता। ठीक है, रवि कॉन्ट्रैक्ट करता है नितिन से कि मैं तेरे को पैसे दूंगा अगर नितिन अनीता से मैरी कर लेता है। अनीता डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू नितिन। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हुआ नहीं हुआ। मोहित मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विथ शिव टू सेल अ हॉर्स टू शिव एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। मोहित बोलता है कि मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, शिव को वो हॉर्स सेल करेगा टू शिव एट अ स्पेसिफाइड प्राइस इफ अजय टू हुम द हॉर्स हैज बीन ऑफर्ड रिफ्यूजेस टू बाय हिम। देखो, मैंने मेघा को बोला कि मैं तुम्हें हॉर्स बेचूंगी, मेघा ही ना, महक, सॉरी, महक को बोला कि मैं हॉर्स बेचूंगी। ठीक है, कब बेचूंगी? जब कबीर वो हॉर्स देने से मना कर देता है। ठीक है, मैं महक को हॉर्स बेचूंगी सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि कबीर मना कर दे वो हॉर्स लेने से। अब द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ। कब तक एनफोर्स नहीं होगा? जब तक कबीर मना नहीं करता। अगर कबीर मना कर देता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? कबीर मना कर देता है तो कॉन्ट्रैक्ट तो एनफोर्सिबल हो जाएगा ना। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल हो जाएगा अगर कबीर मना कर देता है, और अगर कबीर मना नहीं करता तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। मतलब कंटीजेंसी में वॉइडेबल नाम का कोई क्वेश्चन नहीं है, या तो इस साइड या तो उस साइड। और ये जो प्रोबेबिलिटी है कि एनफोर्सिबल होगा या वॉइड होगा, ये कहां दिया हुआ है? सेक्शन 32। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सेकेंड रूल की। रूल सेकेंड जो किधर दिया हुआ है? 33 में। कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंडेंट ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंडेंट अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। सेक्शन 33 प्रोवाइड्स कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एनी अनसर्टेन। क्या है? दो चीजें। क्या है ये? एक तो क्या है? अनसर्टेन है, और दूसरा क्या है? फ्यूचर में है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अनसर्टेन है। दूसरा पॉइंट क्या है? फ्यूचर में है। इवेंट डज नॉट हैपन। इट कैन बी एनफोर्स्ड व्हेन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल एंड नॉट बिफोर। वो ही बोला है सेम। कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। कब? ये अगर रेन नहीं हुई तो ऐसा होगा, कबीर ने मना किया तो महक को हॉर्स मिलेगा, राइट? तो कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड ओनली व्हेन द हैपनिंग ऑफ इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। ठीक है, सॉर्टेड है। चले अब, रोहित अग्रीज टू पे निखिल अ सम ऑफ मनी फॉर सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न। रोहित बोलता है निखिल को कि अगर ये वाला शिप वापस नहीं आया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। द शिप इज संक। शिप आएगा क्या? द कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी एनफोर्स्ड व्हेन द शिप सिंक्स एंड नॉट बिफोर। अगर शिप वापस आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड, क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? अगर ये शिप वापस नहीं आएगा तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। फॉर द पीपल हु हैव जॉइन्ड इन फॉर द पीपल हु हैव जॉइन्ड इन राइट नाउ, मैं एक बार रिवाइव कर देती हूँ फटाफट। चलो, हम क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन क्या है?
31। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? डिपेंडेंट ऑन इवेंट, हैपनिंग या नॉन हैपनिंग। ठीक है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में 4 एसेंशियल्स है। पहला एसेंशियल क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ क्या होनी चाहिए? कंटिंजेंसी होनी चाहिए। दूसरा क्या है? अनसर्टेन होना चाहिए। तीसरा कोलैटरल। और चौथा क्या? विलिंगनेस। किसकी होनी? विलिंगनेस हो सकती है प्रॉमिसर की? नहीं हो सकती। अब हम पढ़ रहे हैं रूल। तो पहला रूल क्या है? रूल 1 कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? 32 में क्या बोला गया है कि अगर कंटीजेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है, अगर वो इवेंट हैपन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? एनफोर्सेबल। हैपनिंग ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। और अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा? वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। ये याद रखना, मैरी वाला। रवि बोलता है नितिन को पैसे दूंगा अगर तू अनीता से शादी कर लेगा। अनीता की डेथ हो जाती है तो क्या वो पैसे मिलेंगे? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड। चलिए, अब दूसरा क्या है? इट इज डिपेंडेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। इट इज डिपेंडेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। चलिए, अब रूल्स रिगार्डिंग कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। Contract is contingent upon the future conduct of a living person। समझिएगा, ये तीसरा रूल कौन सा सेक्शन? 34। तो 34 31 में डेफिनेशन, 32 33 34 में रूल्स। इफ द फ्यूचर कंटीजेंट इवेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ अ पर्सन विल एक्ट एट अ अनस्पेसिफाइड टाइम। क्या डिपेंडेंट है? अगर कोई फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है जिसमें यह बोला गया है कि अगर एक पर्सन ऐसा एक्ट करेगा अनस्पेसिफाइड टाइम में, दैट इवेंट शैल कंसिडर टू हैव बिकम इम्पॉसिबल इफ सच पर्सन डज एनीथिंग विच रेंडर्स इट इम्पॉसिबल दैट ही शुड सो एक्ट विद इन एनी डेफिनेट टाइम, अदरवाइज देन अंडर फ्यूचर कंटीजेंसी। समझो, A agrees to pay B a sum of money if B marries C. C marries D. C marries D. मान लो मैंने अभय के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने अभय को बोला, मतलब कि या ओके राइट, आई एम टेकिंग एग्जांपल राइट, अ सम ऑफ मनी बी मैरीज सी। मैंने बोला अभय अगर तुम ये एक्स से शादी करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। ठीक है, ये जो एक्स है ये वाई से शादी कर लेती है। द मैरिज ऑफ बी टू सी मस्ट नाउ बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। क्या अभय और एक्स की शादी हो सकती है क्या? इसको क्या बोलेंगे? ये क्या एक्ट हो गया? इम्पॉसिबल। ऑल्दो इट इज पॉसिबल दैट डी में डाई एंड सी में आफ्टरवर्ड्स मैरी बी। ऐसा हो सकता है कि वाई की डेथ हो जाए एंड देन एक्स अभय से शादी कर ले, बट एज ऑफ नाउ क्या है? इम्पॉसिबल। एज ऑफ नाउ क्या है? इम्पॉसिबल। तो एग्जैक्टली यही है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। याद रहेगा तुम्हें? याद तो रहेगा ही। अब चलो, क्या देगा? द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड व्हेन सच पर्सन डज एनीथिंग टू मेक द इवेंट इम्पॉसिबल। मतलब जिससे अबे शादी करने वाला था एक्स, उसने वाई से शादी कर ली, तो एज ऑफ नाउ तो इट बिकम्स इम्पॉसिबल। तो लिविंग पर्सन ने क्या किया? वो इम्पॉसिबल इवेंट कर दिया। तो सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन द फ्यूचर कंडक्ट। किसका? ये जिससे अभय शादी करने वाला था एक्स, ऑफ अ लिविंग पर्सन। ठीक है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन। क्लियर है? कंटीजेंट का आज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे ही आपको तुम्हारा टेस्ट है। क्लियर? क्लियर? ये कहां लिखा है? 34 में, 34 में। अब 35। कंटीजेंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। कंटीजेंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। Contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event does not happen within the fixed time। 35 समझना, 35 में does not happen, इसमें दो चीजें, प्लस फिक्स टाइम। does not happen
फिक्स टाइम मे बी enforced. कब enforce होगा? If the event does not happen or it's happening become before the expiry of that time. Before the expiry of that time. Manish will pay Aman rupees 4,000 if a certain ship does not return within a year. मैं महक को 4,000 रुपए दूंगी. कब दूंगी? जब वो शिप वापस नहीं आएगा. द कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्स होगा? मैं तुम्हें 4,000 रुपए कब दूंगी? The contract may be enforced if the ship does not return within a year of the shipment is burned. इंश्योरेंस कैसे बनेगा? इंश्योरेंस का समझी नहीं मैं. बेटा वो तो फ्रॉड हो गया. अगर प्रॉमिसर को पहले से ही पता है कि ऐसा होने वाला है तो ये तो फ्रॉड हो जाएगा. तभी तो ये रूल है, द कंटीजेंट इवेंट शुड नॉट बी मियर विल ऑफ प्रॉमिसर. अगर प्रॉमिसर को पहले ही पता है कि शिप वापस नहीं आने वाला है तो वो तो फ्रॉड हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी पर. वो कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज है. अब भाई ये बोल रहा है कि अगर उसे पता है कि भैया वापस नहीं आने वाला है तो वो इंश्योरेंस वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर ले पहले ही. ये इंश्योरेंस एक नॉर्मल अफेयर में होना चाहिए. इंश्योरेंस एक नॉर्मल अफेयर का पार्ट होना चाहिए. अगर मान लो, देखो सुनो मैंने किसी, सुनो एक बात, मेरे को पता है ये नॉन पर्सन है, ये वापस नहीं आएगा, इसका मर्डर होने वाला है, इसके नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, मैं नॉमिनी बन जाती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं फ्रॉड कर रही हूँ. कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है. अगर मुझे पहले ही पता है मतलब वो फ्रॉड है. कंटीजेंट मतलब अनसर्टेन, मेरे को पता ही नहीं है कि ये हो सकता है. Got it? फ्रॉड है वो तो कॉन्स्पिरेसी हो गई. मैं मर्डर की कॉन्स्पिरेसी कर रही हूँ, वो आईपीसी में चले जाएगा. इट्स अ कॉन्स्पिरेसी. यू विल बी हेल्ड ट्रायल एंड सेंड टू जेल. चलिए अब देखो 35 समझना. 35 अब अपने 34 में क्या पढ़ा कि कोई इवेंट नहीं हो प्लस उसका टाइम फिक्स हो. तो एग्जाम्पल में देखो क्या नहीं हो रहा है, शिप वापस नहीं आ रहा, और फिक्स टाइम मतलब 1 साल. ठीक है, ये है 35. 35 का दूसरा पार्ट पढ़ो. कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू नॉट टू डू एनीथिंग इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपेंस विद इन अ फिक्स टाइम. मैं महक को पैसे दूंगी अगर शिप 1 साल में वापस आ जाए. अगर शिप 1 साल में वापस आ गया तो मैं महक को पैसे दूंगी. तो सेकेंड वाला पार्ट में है द इवेंट हैपेंस प्लस फिक्स्ड टाइम. 35 का पहला पार्ट है इवेंट ना हो एक फिक्स टाइम में. 35 का सेकेंड पार्ट क्या है? इवेंट हो फिक्स टाइम में. ठीक है, चलो अब रूल्स रिगार्डिंग कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट 36 रूल 5. contingent agreement to do not to do anything if an impossible event happens are void whether or not the fact is known to the party. A agrees to pay B rupees 1 lakh if the sun rise in the west next morning. ये तो होना ही है ना. This is an impossible event and hence void. तुम लोग ये इसमें मेरे को एक वो नहीं बता रहे, इसमें ये लूप होल है, तुम लोगों ने कैच ही नहीं किया. क्यों? और बताओ. एग्जैक्टली सन तो ईस्ट से राइज होता है ना, तो इसलिए ये इम्पॉसिबल है उस कॉन्टेक्स्ट में. हाँ, तो इसलिए पहले से वॉइड है. ए अग्री टू पे 1,000 टू बी द बी मैरी सीज डॉटर डी. डी उस टाइम डेथ था, डी था ही नहीं. डी की उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा और तुम मुझे 10,000 रुपए दोगे. वो बेटी होनी भी तो चाहिए ना शादी करने के लिए, वो है ही नहीं, तो अग्रीमेंट क्या है? वॉइड. तो समझो, अब पढ़ो लाइन. कंटीजेंट अग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग
इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन्स, कुछ करना या ना करना, जब वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो इम्पॉसिबल इवेंट तो हो ही नहीं सकता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? तुम इसमें सन वाले का एग्जाम्पल याद रखना, सन वाले का एग्जाम्पल, एक में अभय का एग्जाम्पल याद करना है, इम्पॉसिबल, बट वो क्या था? लिविंग पर्सन था, वो क्या था? लिविंग पर्सन, और क्या था? फ्यूचर इवेंट। ठीक है, चलो अब वेजरिंग करेंगे, करें रिवीजन करें। किसको डाउट है पहले कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे ये बताओ। कॉन्सेप्ट में डाउट है, अगर कॉन्सेप्ट में डाउट है तो फिर मैं लर्न कराऊंगी बाद में। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट में डाउट है? एनीबॉडी एनी डाउट विद कॉन्सेप्ट? हाँ, फोन मत देखो, फोन तुम्हें डुबा लेगा, मैं बता रही हूँ। व्हेन आई वाज स्टडिंग, इमेजिन मेरे पास फोन ही नहीं था, मैं अपनी मॉम का फोन यूज करती थी, एंड ये अभी की बात है, प्लीज माइंड यू, ये 2013, 14, 15 की बात है, ये मत समझना कि मैं बहुत बुढ़ापे वाली हूँ। कम ऑन यार, मेरे फ्रेंड्स के पास, सबके पास था। मेरे को फोन पता है कब मिला है? व्हेन आई क्लियर सीएस एंड आई वाज ग्रेजुएट, जब मैं सीएस हो चुकी थी, जब मेरा ग्रेजुएशन हो चुका था, एंड व्हेन आई वाज गोइंग दिल्ली टू परस्यू माय लॉ, तब मुझे फोन दिया गया है। और अब एक और चीज, लग्जरी फोन्स तो मैंने खुद के पैसे से लिए हैं, वो भी मेरे को मेरे फैमिली वालों ने कभी नहीं दिलाए, बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव्ड इन द लग्जरियस प्रिविलेज आइटम्स की बच्चों को देना चाहिए। तो अगर तुम लोग के पास एप्पल है, अब लग्जरियस प्रिविलेज लोग हो तुम लोग, गुड। पर सेविंग के पैसे भी तो पापा के होंगे। तुम लोग का लॉ का, वेयर डिड यू, अच्छा तुम लोग लॉ का 12th कहाँ से हुआ है? तुम इधर बाहर के हो, इंदौर के नहीं हो, ऊपर रहते हो? पीजी, बगल में पीजी लिया है? अच्छा है, गुड, लाइक नाइस, खाना अच्छा देते हैं? हॉस्टल एंड पीजी मेट्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है बस, खाने की। बट आई थिंक जो गर्ल्स ऊपर रहती है इन द गर्ल्स हॉस्टल, दे आर हैविंग गुड स्पेस। हाँ, तुम लोग रहते हो ऊपर? यस, ऊपर। कितने लोग लोकल आइड है यहाँ पे? फ्रॉम इंदौर इटसेल्फ, घर अपना है, पापा मम्मा यहाँ रहते हैं? 5-4 घर हैं? मैं 5 साल से इंदौर में हूँ। हाँ, गुड, ओके। किसके पास आईफोन है? 15, 16, 15, 7? चलो अब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, चलिए। क्या मस्ती कर रहे हो? मस्ती, आ- आज तुम वैसे भी आगे कैसे बैठे? अच्छा, चलो, अच्छा, मेरे को लगता है यू ऑल्सो फेस प्रॉब्लम इन सीइंग ना, तो व्हाई डोंट यू सिट आगे? हाँ, मैं भी देखती हूँ एक्सप्रेशन, मेरे को दिखता है यहाँ से एक्सप्रेशन, चलो बट ठीक है, चलो, रेस्ट अश्योर्ड। बाकी आई विल चेक द पेपर्स टुडे विच यू गाइज हैव गिवन। यश, तुम्हारा आंसर तो मुझे अच्छा लग रहा है, being honest, as like a prima facie as in taking a look at once, it looks good, it looks decent, it is good.
महक यू ऑल्सो राइट गुड, अच्छा लिखती हो। अब है वास्ट इंप्रूवमेंट, गुड, वास्ट इंप्रूवमेंट। और स्टेपलर का है, कबीर राइट अगेन, राइट अगेन, राइट कुछ भी हो बट राइट अगेन। तबीयत वापस ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। कबीर राइट अगेन प्लीज, मेरे को कल वापस देना, वापस, ठीक है। मेरे को पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ूंगी, मेरा क्लास तो कंटिन्यू करने दो, एक बार पढ़ूंगी मैं पढ़ के कमेंट्स डाल के दूंगी, ऐसा नहीं है। बट यश वास्ट इंप्रूवमेंट, गुड, वेरी नाइस। मतलब अब मैं इसमें कमेंट्स लिख दूंगी। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि एक बार इसकी राइटिंग, मतलब राइटिंग स्टाइल देखना, अच्छा लिखा है, नाइस, गुड। मतलब वास्ट इंप्रूवमेंट है तुम्हारी राइटिंग में। कल जो तुमने मुझे एक पेजर दिया था, अगर तुम ये लिख के आते हो तो नोबडी कैन स्टॉप यू। अगर तुम ये लिखकर ऐसे सारे आंसर्स आते हो तो। महक वेरी नाइस। देखो हम तो, मैं जो फ्रेश बैचेस ले रही हूँ, फ्रेश बैचेस में तो यू नो व्हेन इट कम्स टू फ्रेश बैच, मतलब लाइक वी स्क्रू पीपल अ लॉट। एंड पॉइंट क्या है कि ऐसे ही होता है काम, अदरवाइज यू कैन नॉट राइट आंसर्स। चाली वो एक पेज दिया था, वो तो मैंने आई डिड नॉट लाइक, कल जो दिया था बोर्ड रूम में आके, नोप, रिक्वायर्स इंप्रूवमेंट अ लॉट। यू गाइस, श्रेया ने तो पेपर दिया था राइट मुझे कल, हाँ वो तो मैंने देखा था। बाकी तनु, तुम लोग और पेपर क्या दिया था? ठीक है, पेपर आंसर राइटिंग नहीं करनी, आई एम टॉकिंग टू यू, या but still for the last 3 papers that you attended the class you will give, okay chalo chale। and आप, तुम्हारा नाम क्या है? आई एम सॉरी आई फॉरगॉट, बताओ क्या यार? अजन, हाँ अजान, अजान मैं रोज सुनती हूँ, मुझे याद नहीं रहता। अजान तुम्हारा पेपर आज डिस्कस कर लेंगे, आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलें, चले फास्ट चलें, चलो। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट गाइस, गाइस एक तो सबसे पहले सीधे बैठो, सीधे बैठो, स्पाइन सीधी करो, स्पाइन सीधी करो। और फोन, if I got again the visibility that you are seeing the phone, I will make sure that it's taken away, please, and do not challenge me on this। चलो ठीक है, do not guys challenge me, I will not give it back। चलो चलो, बैक स्ट्रेट, सब लोग सीधे बैठो। चलो, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किधर है? 31 में। 32, 33, 34, 35, 36 में क्या है? रूल्स है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनोलॉजी अब क्या लिखोगे? फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, क्या लिखोगे? ठीक है, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट हैपन या नॉट हैपन, दोनों केस में हो सकता है। शिप आ गई तो मैं महक को 4,000 रुपए दूंगी, शिप नहीं आई तो मैं महक को 4,000 रुपए दूंगी, दोनों की कंडीशन हो सकती है। रेन हुई तो मैं 4,000 रुपए दूंगी, रेन नहीं हुई तो मैं 4,000 रुपए दूंगी, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, क्या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट है? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट है? हाँ है। चलो अब एक बात बताते हैं, पहला असेंशियल, असेंशियल कितने हैं? असेंशियल कितने हैं? पहला असेंशियल कितना है? अगर कंटीजेंट है तो क्या होना जरूरी है? कंटिजेंसी, कंटिजेंसी होना जरूरी है। सेकंड क्या? अनसर्टेन। थर्ड क्या? कोलैटरल। फोर्थ क्या? विलिंगनेस ऑफ द प्रॉमिसर हो सकता है? नहीं हो सकता, करेक्ट। अगर हो गया तो वो क्या हो जाएगा?
वो तो फ्रॉड हो जाएगा, जो अभय ने एग्जाम्पल भी दिया था, राइट, याद रखना। चले, अब जब हम 4 एसेंशियल्स पढ़ेंगे तो पहला रूल कौन सा, सेक्शन 32। अगर ये देखना, क्या अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, अगर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, और अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, अब इसमें याद, अब रूल्स रिगार्डिंग कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का रूल 2, क्या कंटीजेंट डिपेंडेंट है किस पे, नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे। अगर वो इम्पॉसिबल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, वॉइड। ठीक है, अब 34 में क्या याद रखोगे, अभय वाला शादी का एग्जाम्पल। ठीक है, कि किसने किया है, वो डिपेंडेंट किस पर है, फ्यूचर कंडक्ट पे। फ्यूचर कंडक्ट किसका, लिविंग पर्सन का, लिविंग पर्सन का फ्यूचर कंडक्ट पे डिपेंडेंट है। फ्यूचर कंडक्ट पे डिपेंडेंट तो है, बट किसका, लिविंग पर्सन का, किसका, लिविंग पर्सन का। अब इस पे आओ रूल 4 पे। अब रूल 4 पे दोनों, 35 में दोनों चीजें हो सकती है, डज नॉट हैपन एंड फिक्स टाइम, डज हैपन फिक्स टाइम, डज नॉट हैपन फिक्स टाइम, डज हैपन फिक्स टाइम। 35 में दोनों है। इसमें क्या एग्जांपल याद रखोगे, महक वाला, शिप वाला, महक का शिप वाला। अभय के एग्जांपल में दो चीजें क्या हैं, लिविंग पर्सन प्लस फ्यूचर कंडक्ट, प्लस फ्यूचर कंडक्ट। ठीक है, 36 में क्या याद रखोगे, दैट अगर वो इम्पॉसिबल इवेंट है और पार्टी इसको पता है, पार्टी को सबको पता है, सन राइजेस इन द ईस्ट सेट्स इन द वेस्ट, राइजेस इन द ईस्ट वेस्ट सेट्स इन द वेस्ट। तो ऑलरेडी जब पार्टी को पता है कि इम्पॉसिबल है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। ठीक है, इजी। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमने कहां से कहां तक पढ़ा, 31 टू 31 में क्या थी डेफिनेशन, 32 में, 32 से लेके 36 में क्या था, रूल्स थे। एसेंशियल्स कितने हैं, 4, क्या कौन कौन से बता दो, कोलेट्रल और क्या, विलिंग, देखो सुनो, विल ऑफ द प्रॉमिसर, एग्जैक्टली। ठीक है, किसी को कोई डाउट, तुम पेपर कब लाके दोगे, लिखा है, गुड। चलो, अब आएगा वेजरिंग, अब आएगा वेजरिंग, वेजरिंग का सेक्शन 30, वेजरिंग का सेक्शन। कोई वॉइड अग्रीमेंट की लिस्ट बता पाएगा, ओके, फर्स्ट 11 और 29, अनसर्टेन, यस, वेरी नाइस, गुड, गुड, वेरी नाइस, गुड, रट्टा पड़ गया है, ऐसे ही बस मानना है। ठीक है, चलो, अब वेजरिंग, लिटरली द वर्ड वेजर मीन्स bet, something to be lost or won as a result of doubtful issue। इंडिया हार जाएगी, इंडिया जीतेगी। It is a promise to give money or money's worth upon the determination or ascertainment of uncertain event। The section does not define wager। क्या लिखा है, The section does not define wager। Section 30 states that agreements by way of wager are, अगर वेजरिंग अग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड, तो इसीलिए वो लिस्ट में था वहां पर। एंड नो सूट शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग अलेज्ड टू बी वॉन ऑन एनी वेजर और entrusted to any person to abide the result of any game or other uncertain event on which any wager is made। अब मुझे बताओ, लोग गैमलिंग खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, क्या वो कोर्ट में जाके इन्फोर्स कर सकते हैं क्या वो कॉन्ट्रैक्ट, नहीं कर सकते। तो वेजरिंग अग्रीमेंट क्या है, वेजरिंग अग्रीमेंट क्या है, वॉइड।
इसी को तो गैम्बलिंग बोलते हैं। तुम्हें सब पता है इसके बारे में? नहीं नहीं, हाँ नहीं कर सकते, इलीगल है, वॉइड है, यस, ठीक है, गुड। चलो फर्स्टली अब ये समझो, फर्स्टली इवेंट क्या है, इसमें तुम लोग क्रिकेट गैम्बलिंग याद रखना, सिंपल होता है वो याद रखने के लिए। अनसर्टेन है, नहीं पता कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। सेकेंडली द पार्टी मस्ट हैव नो इंटरेस्ट इन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, पार्टीज का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो क्या कोई जीतेगा नहीं जीतेगा उसमें हमारा इंटरेस्ट है क्या? नहीं है। इफ A and B mutually agree that if it rains today, A will pay ₹100 and if it does not, B will pay ₹100. ये क्या है? बेट। आज बारिश हो गई, तू मुझे 100 रुपए देना, नहीं हुई मैं तेरे को 100 रुपए दूंगा। मैं आ रही हूं, नहीं, इसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस है, इवेंट पे डिपेंडेंट है। एग्जैक्टली ये कोलैटरल इवेंट पे डिपेंडेंट है, बट रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस भी है इसमें। तुम गैम्बलिंग करते हो, गैम्बलिंग जब करते हो तो तुमने बोला क्रिकेट में अगर इंडियन टीम जीती तो मैं 500 रुपीज जीतूंगा, दैट्स एन इलीगल इवेंट, दैट्स अ रेसिप्रोकेटिव इवेंट। कंटीजेंट में इलीगैलिटी नहीं है, मैंने डिफरेंशिएशन डाला है, पढ़ना अभी मैं पढ़ाऊंगी। इलीगैलिटी का भी एक एलिमेंट है जो कंटीजेंट और वेजरिंग को डिफाइन करता है, बट विथ रिस्पेक्ट टू एग्जैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट में क्या वेजरिंग और क्या कंटीजेंट की कैटेगरी में आएगा वो हम स्लाइड्स में पढ़ेंगे, बिकॉज इज अ डिफरेंस। ठीक है, चलो ये रहा, आई गया। अ प्रॉमिस टू गिव मनी और मनी इज वर्थ फॉर अनसर्टेन इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। वेजर में देखो, याद करो क्रिकेट का गैम्बलिंग। A contract to do or not to do something for collateral event happening or not happening, उधर क्या है? मनी। इधर क्या है? इधर to do something or not to do something। ये क्या है? void। ये क्या है? इसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं, इसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, ये कंटीजेंट इन नेचर है, ये वेजरिंग इन नेचर नहीं है। द पार्टी, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसमें इंटरेस्ट होता है। एंड इट इज अ गेम, लूजिंग गेनिंग अलोन मैटर्स, इट इज नॉट अ गेम। इजी इजी। वेजरिंग क्या होंगे? वॉइड अंडर सेक्शन 30, राइट। चलो वेजरिंग में मनी इन्वॉल्व होता है, कंटीजेंट में टू डू नॉट टू डू। वेजरिंग में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं, कंटीजेंट में कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होता। वेजरिंग में पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कंटीजेंट में पार्टीज का इंटरेस्ट होता है। अजान, फोन चला रहे हो? अच्छा ठीक है, अच्छा तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ओके ठीक है ठीक है, करो करो। वो ये क्या है? वॉइड। ये क्या है? वैलिड। करें, चलो ये समझना। वेजरिंग, वेजरिंग पे आए, समझना वेजरिंग। वेजरिंग वॉइड कहां पर है? 30। कहां पर है? 30, ठीक है। वेजरिंग में सबसे पहले तो क्या वो इन्फोर्स कराया जा सकता है? क्या हम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं। बट कंटीजेंट और वेजरिंग में डिफरेंस क्या है? तो कंटीजेंट में किसकी बात करी जाती है? मनी की, मनी की। कंटीजेंट में किसकी बात, सॉरी वेजरिंग में किसकी बात करी जाती है? मनी की। कंटीजेंट में किसकी बात करी जाती है? टू डू। क्या पार्टीज का कोई इंटरेस्ट होता है वेजरिंग में? कंटीजेंट में होता है। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहाँ होते हैं? कंटीजेंट में नहीं होते, ठीक है। अच्छा वो क्या होता है? वॉइड। ये क्या होता है? वैलिड। अब वो क्या है? वेजरिंग एक गेम, और कंटीजेंट क्या है? वो क्या वेजरिंग एनफोर्सेबल है? कंटीजेंट एनफोर्सेबल है, हाँ। चले अब बात करते कौसा है। तो अभी तक हमने 3 सेगमेंट पढ़ रहे हैं आज हमने, कंटीजेंट, वेजरिंग, कौसाय। कौसाय पढ़ेंगे। कंटीजेंट वेजरिंग में किसी को कोई डाउट है? कंटीजेंट वेजरिंग में किसी को कोई डाउट है? हाँ, कोई डाउट नहीं है, इजी इजी। चले अब कौसाय। कौसाय मीन्स ऑलमोस्ट और अपेरेंटली बट नॉट रियली। कौसाय मतलब ऑलमोस्ट, अपेरेंटली बट नॉट रियली। A quasi contract is a contract
that exist by the order of court, not by agreement between the parties. ये किससे exist करता है? by the order of court. तो कौसा है मतलब court, कौसा है मतलब court. ये क्या agreement of parties होता है? agreement of parties होता है? नहीं. court create quasi contract to avoid the unjust enrichment of a party in a dispute over payment for good or service. अगर एक पार्टी को कोई ज्यादा फेवरेबल ट्रीटमेंट मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, तो कोर्ट जस्टिस करने के लिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनाती है. जस्टिस करने के लिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनाती है. नो मैन कैन ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन लॉस. नो मैन कैन ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन लॉस. अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहां है? 68 deals with certain relation resembling those created by contract. अब आ जाओ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. सप्लाई ऑफ नेसेसरी समझाएंगे मैं. पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुइटस एक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स एंड मनी पेड बाय मिस्टेक और क्वेरेशन. ये क्या आएंगे? 68 से लेके 72 में क्या है? डीम्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. क्या आएगा? डीम्ड. डीमिंग अफेक्ट. डीमिंग अफेक्ट क्या होता है? डीमिंग अफेक्ट मतलब हाँ समझ लेना, मान लिया जाना कि ये तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कौन बनाता है? कोर्ट बनाता है, राइट? जब कोर्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, ठीक है, तो क्या ये अग्रीमेंट बाय पार्टीज होता है? क्या ये अग्रीमेंट बाय पार्टीज होता है? नहीं. चलो अब आओ. क्लेम for supply of necessaries to person incapable of contracting. Things suited to the condition of incompetent person includes article required to maintain a particular person the state and degree in the life in which he is, an article without which an individual cannot reasonable exist. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी नेसेसरीज को सप्लाई करना, किस इंसान को सप्लाई करना? जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इनकेपेबल हो. तो क्या मान लिया जाएगा कि एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है. कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, बट डीमिंग अफेक्ट है कि वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है. किसी ऐसे पर्सन को ऐसी नेसेसरीज प्रोवाइड करना, डीमिंग अफेक्ट देना जो इनकेपेबल है नेसेसरीज लेने के. ठीक है. पेमेंट क्वासी मतलब समझ रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, एग्जिस्टेंस में कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, बट डीमिंग अफेक्ट क्या माना जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट है. चलो. पेमेंट ऑफ लॉफुल ड्यूज बाय इंटरेस्टेड पर्सन, रिम्बर्समेंट ऑफ मनी पेड. अब समझा. देयर मस्ट बी अ पर्सन हु इज बाउंड टू मेक अ पेमेंट बाय लॉ. द पर्सन पेइंग मस्ट हिमसेल्फ नॉट टू बाउंड टू पे. सुनना, मैंने और अभय ने प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है, शहडोल में ली. अभय को टैक्स पे करना थे खरीदने के पहले के. अभय ने टैक्स पे और बेच मेरे को दी. अब वो प्रॉपर्टी किसकी है? मैं कौन हूं उसमें? इंटरेस्टेड पर्सन. क्योंकि मेरे को मेरी प्रॉपर्टी को बचाना था, मैंने वो टैक्स पे कर दी है. अब पढ़ो. पेमेंट ऑफ लॉफुल ड्यूज. क्या टैक्स पे करना लॉफुल था? बाय इंटरेस्टेड पर्सन. मैं कौन हूं? इंटरेस्टेड पर्सन. करूंगी वो तो, ठीक है. चलो. देयर मस्ट बी अनदर पर्सन इंटरेस्टेड नॉट बाउंड बाय लॉ. तो ये कौन हूं? मैं बाउंड थी या लॉ से भरने के? बाउंड कौन था? बट क्योंकि मेरी मजबूरी हो गई तो अब मुझे पे करने पड़ेंगे. इन सच पेमेंट being made an interest should exist to the time of payment and the payment must be made by bona fide for protection of one's own interest. मैंने क्यों पे किया? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था उसमें. अगर मैं पे नहीं करती तो गवर्नमेंट मेरी प्रॉपर्टी सीज कर देती. हो गया. तो पहला नेसेसरीज. दूसरा लॉफुल ड्यूज कि कौन करेगा? इंटरेस्टेड पर्सन. चलिए. पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ अ ग्रेटिटियस एक्ट. पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ अ ग्रेटिटियस एक्ट. Obligation of a person enjoying benefits of a non-gratuitous act. Person lawfully does anything for another person.
delivers anything to him non-gratuitously, later is bound to make compensation or restore the things so done or delivered. The thing must be done lawfully and the person for whom the act is done must enjoy the benefit of it. इसमें तुम कौन सा एग्जाम्पल डालोगे बताओ, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, बताओ। नहीं आ रहा, समझो, देखो, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुटियस एक्ट, क्या बताओ ना। पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन, मैंने महक के लिए कुछ लॉफुली करा, उसका पर्स लौटाया। डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉन ग्रेचुटियसली, लेटर इज बाउंड टू मेक कॉम्पेंसेशन और रिस्टोर द थिंग्स डन और डिलीवर्ड। क्या वो बाउंड है लीगली देने के? हाँ हाँ, द थिंग मस्ट बी डन लॉफुली, उसको देना चाहिए, मेरे को उसका पर्स वापस लॉफुली देना चाहिए अगर मेरे को मिल गया है तो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। कॉम्पेंसेशन, वॉलंटरीली कॉम्पेंसेशन, द पर्सन फॉर हुम द एक्ट इज डन मस्ट एंजॉय द बेनिफिट ऑफ इट। तो क्या आ जाएगा? नॉन ग्रेचुटियस एक्ट किसके लिए? सामने वाले के लिए। तो क्या हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट था क्या? बट क्या माना जाएगा कि मुझे अगर पता है कि वो महक का पर्स है तो मैं उसे लौटा दूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, ये भी इसी में आएगा। अ पर्सन हु फाइंड्स गुड बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम टू हिज कस्टडी सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बेली, एज द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बेली। He must try to find out the real owner of goods. He must take care of goods. No right to appropriate and restore. वो real owner try करे कि कौन है, उसकी वो जितना भी जो उसके पास सामान है उसका ध्यान रखे, उसका कोई राइट नहीं कि वो उसे यूज कर सकता है और उसे वापस रिस्टोर करे, और उसे वापस रिस्टोर करे। अब डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और कोएजन, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और कोएरेजन। अगर किसी को मिस्टेक या कोएरेजन से कोई प्रॉपर्टी आ गई है तो वापस उसको आप लौटा दो, कौसाई कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आएगा। अब देखो कौसाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? कौसाई कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर ऑफ कोर्ट। एंड क्या ये रियल कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सेक्शन कहां से कहां तक में डीमिंग अफेक्ट है? 68 में क्या है? नेसेसरीज। 69 में क्या है? लॉफुल ड्यूज। 70 में क्या है? नॉन ग्रेचुटियस एक्ट। 71 में क्या है? क्या? फाइंडर ऑफ गुड्स। एंड 72 में डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और कोएरेशन। चलो अब सुनना, देखो मेरे को एक नेसेसरी चाहिए थी, मेरे को शैम्पू की रिक्वायरमेंट थी, एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। मैंने इंटरेस्टेड पर्सन को कॉल लगाया कि तुम्हें भी चाहिए, एक पे वन ऑफर आ रहा है, 1 पे 1 ऑफर आ रहा है। तो उससे बोला हाँ मैं भी इसकी बेनिफिट एंजॉय करूंगी। तो ये क्या है? नॉन ग्रेचुटियस एक्ट। क्या है? अब वो मेरे पास आ गया उसका शैम्पू, तो मैं क्या हूं? मेरे को उसको ढूंढना है, फाइंडर ऑफ गुड्स, और मैं मिस्टेक से या कोएरेजन से वो माल नहीं रख सकती या वो मैं शैम्पू नहीं रख सकती। एक स्टोरी बनाओ और अब सोचने की कोशिश करो, क्या फ्रेम कर पा रहे हो? पहला क्या है? मेरी नेसेसरी थी, उसकी भी थी, फिर क्या था? लॉफुल ड्यूज, फिर नॉन ग्रेचुटियस एक्ट, फिर फाइंडर ऑफ गुड्स, फिर मिस्टेक और कोएरेजन, मिस्टेक और कोएरेजन। चलिए अब एक वो बना लो, अगर देखो कंटीजेंट, वेजरिंग और कौसा है। बुक अपनी बंद कर लो सब लोग, कॉपी बुक जो भी है बंद कर लो। चले समझना, कंटीजेंट सेक्शन क्या क्या पढ़ा हमने इसमें? रूल्स और 4 एसेंशियल्स। रूल्स कहां से कहां तक है? 32 से लेके 36 तक, ठीक है। वेजरिंग कहाँ है?
30। वेजरिंग में हमने क्या पढ़ा? हाँ क्या? जोर से बोलो। मनी में होता है, करेक्ट। तो हमने वेजरिंग में कंटीजेंट और कंटीजेंट और वेजरिंग का डिफरेंस पढ़ा, राइट। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड अंडर सेक्शन 30। फिर हमने क्या पढ़ा? कौसा है। कौसा है क्या? कौसा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डीम टू बी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कहां से कहां तक डीमिंग इफेक्ट है? क्लियर है? कौसा है क्लियर है? चलो अब अपन पढ़ते हैं आंसर राइटिंग। देखो जो तुम बोल रहे हो वो हो सकता है सही हो सकता है सही हो। बेटा ये सब इंटरनल चीजें हर जगह है, ऐसा नहीं है कि इसी जगह पर है। और इंटरनल चीजों का डिस्कशन करके लॉ पॉइंट में अपन लिख ही नहीं सकते। तुम अगर ये लिख के आओगे कॉपी में तो लिख थोड़ी सकते हो। यू कैन नॉट राइट दिस। एंड कैन यू कॉल समबडी, कैन यू कॉल समबडी फ्रॉम आउटसाइड? क्या? पेन का कॉन्सेप्ट मुझे पता है बेटा, 59 to 61 समझाऊंगी, डोंट वरी। अभी तो वी आर टुगेदर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या स्क्रीन में विजिबल है? इस आ गया? चलो, illustrate the situations in which the quasi contract arises according to the Indian Contract Act। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ विजिबल है, ठीक है, थैंक यू। मैंने स्क्रीन चेंज किया था, ओके। चलिए, illustrate the situation in which a quasi contract arises according to the Indian Contract Act 1872। क्या लिखोगे इसमें? सेक्शन कौन कौन से लिखेंगे अब है? प्रोविजन जो रहेगा उसका रिलेटेड निमोनिक्स क्यों लिखेंगे? अब है मेरे को बताओ, एनालिसिस क्यों लिखेंगे? सिचुएशन थोड़ी है ये। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बैराक का। हाँ एनालिसिस काय का एनालिसिस? illustrate the situations in which a quasi contract arises according to the Indian Contract Act 1872। ठीक है, क्या लिखोगे इसमें? सेक्शन कौन से लिखेंगे? 68 क्या है? 62 69 लॉफुल ड्यूज, 70 71 फाइंड आउट 72 ये लिखेंगे बेटा। और अब ये बताओ, ये इलस्ट्रेट क्या होता है? यही गलती है तुम लोगों की। यस, एग्जाम्पल लिखा तो है, इलस्ट्रेट द सिचुएशंस। तुम इसी में तो नंबर खाते हो।
हाँ ये देखो, एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल, एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल, एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल, एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल। सिंपल है, इलस्ट्रेट द सिचुएशंस। अगर तुम्हें याद है तो केस का नाम लिखो, नहीं याद है तो मत लिखो। अगर तुम्हारे पास कोई पर्टिकुलर पॉइंट का केस है, अगर तुम्हारे पास कोई पर्टिकुलर पॉइंट का केस है जिसका फैक्ट तुम्हारे सेक्शन से जुड़ता है, तो तुम क्या लिखोगे? द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ 69, द पर्टिकुलर सेक्शन 69 कैन बी explained through a landmark case law which is X versus Y, and the facts of the case are similar to this particular point of the quasi contract. ये बताना तो पड़ेगा ना उसे कि तुम अपना पॉइंट लिंक कर रहे हो, ये बताना तो पड़ेगा ना, करेक्ट? अब बताओ, तुम लोग समझ रहे हो? तुम लोग कहाँ बात कर, ओनली वन पर्सन सेड कि एग्जाम्पल लिखेंगे, तुम लोग तो 60 to 72 छाप के आ जाते हैं, वो नंबर ही नहीं देता। लॉ में नंबर ऐसे नहीं आएंगे, मैं बता रही हूं, लॉ में नंबर ऐसे नहीं आएंगे अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो। क्लियर? अब देखो दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक। क्या क्या लिखोगे? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करोगे, और पॉइंट क्या, कौन सा पॉइंट? क्या? और कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, क्या लिखोगे? अंडर जस्ट एनरिचमेंट, और क्या? एम्फोर्सेबल लॉ, और विलिंग नहीं करते, कोर्ट करता है, और डीम टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, और ठीक है, ये लिखा, नो फॉर्मल अग्रीमेंट, ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय लॉ, अनजस्ट एंड नॉट वॉलेंट्री। एग्जाम्पल लिखोगे बस। अगर ये 6 मार्क का आएगा तो क्या लिखोगे? केसेस इन विच द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डीम्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स सर, एग्जैक्टली लिख सकते हो, बट हर पॉइंट का एग्जाम्पल लेके नहीं आ पाओगे, 6 नंबर के हिसाब से भी नहीं आएगा उधर, मैं बताती हूँ। तुमने कैरेक्टरिस्टिक लिखा, एक एग्जाम्पल में सारे कैरेक्टरिस्टिक होंगे तो ही तो वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक एग्जाम्पल में वो कैरेक्टरिस्टिक सारे होंगे तो ही तो वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल डाला है यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखोगे अगर 6 नंबर का आंसर होगा तो? कौन सा सेक्शन? कोई नहीं बोलेगा कौन सेक्शन। हाँ से, ठीक है, 6872 क्या है ये? डीम्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, डीम्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। जब इसको समझाओगे तो क्या 1.5 पेज नहीं भरेगा क्या? ठीक है, इजी है। किसी को कोई स्पेसिफिक पेपर डिस्कस करना है? गुड, फिर तो सही है। कल वाला ना, कल डेट क्या थी? 11th। तनु कौन सा बोल रही हो? चलो पढ़ते हैं, पढ़े। आई एम नॉट फीलिंग अ बिट हेल्दी टुडे। हाँ हाँ, चलो। एक्स एंड वाई, आ क्यों नहीं रहा सर? अच्छा, एक्स एंड वाई एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट
where X agrees to construct a house for Y by a certain date. पढ़े? X and Y enter into a contract where X agrees to construct a house for Y by a certain date. अच्छा, अब ठीक है? अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉरी, ओके. Due to unexpected labor issues, X fails to meet the deadline. Guys, Azan, Y incurs additional cost to hire another contractor. ठीक है? Can Y claim compensation from X? Discuss what constitute a reasonable compensation under ICA, citing relevant sections and case laws. बताइए क्या? तुम तो सेक्शन बताओ क्या है. ओके, बताओ. क्या है 73? नहीं, सेक्शन तो है. क्या है? तूने देखा है? कम ऑन, सुनो, यहाँ इधर उधर बैठती थी मैं पहले. कोई और बता पाएगा? गुड, वेरी नाइस. और एनीबडी नीड्स टू ऐड सम पॉइंट? सोच के तो ऐसा बोले मैम 73. चलो पढ़ो. यस, Y can claim compensation from X under ICA. 73 of the Act specifically addresses compensation for losses due to breach of contract. प्लीज ये बात समझो, ये बहुत ही सिंपल ये है सेक्शन. ये वाला जो सेक्शन है ना, सेक्शन 73 में हमेशा डैमेजेस क्लेम कर सकता है हर इंसान अंडर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अंडर, तो देखो मैं बताती हूँ ये बात. पहले क्वेश्चन समझ आया सबको कि नहीं आया? पहले ये बताओ. एक बार मैं रिपीट कर दूं क्या सिचुएशन में? अब है, यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? एवरीबडी अंडरस्टूड द क्वेश्चन? ठीक है, समझो. अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोई भी सिचुएशन में होता है तो डैमेजेस का सेक्शन हमेशा 73 लगेगा. हमेशा 73 लगेगा. According to section 73, if a breach contract is breached, the party who suffers the breach is entitled to compensation for any loss or damage caused which arose naturally from the breach or which the party knew would likely result from it when they entered into contract. In this case, X failure to complete construction by the agreed deadline constitutes the breach of contract. The additional cost which the Y incurred to hire another contract are a direct consequence of this breach. Thus, it is liable for compensation. As stated by Charlie also. Understand? चार्ली ने टाइम इज द एसेंस का एक एग्जांपल दिया था कि टाइम इज एसेंस भी एक वैलिड पॉइंट है. आप एक लाइन नीचे लिख सकते हो, assuming in this question that the time was an essence for Y. बट इसमें पता है क्या है? मैं तुम्हें बताऊं एक चीज, इसमें ना सर्टेन डेट लिखी है, तो तुम्हें अज्यूम करना पड़ेगा यस कि वो सर्टेन है, वो फिक्स्ड है. तो तुम्हें लिखना पड़ेगा एज अज्यूमिंग इन द क्वेश्चन दैट द डेट इज फिक्स्ड बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी बीइंग द टाइम ऑफ एसेंस. वो वाला पोर्शन टाइम ऑफ एसेंस के अंडर भी जा सकता है. ये तुम क्या क्रिएट कर रहे हो अपनी एज, क्योंकि ये सारे लोग लिख के नहीं आएंगे. और जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, डैमेजेस का एक ही सेक्शन है. कौन सा? हमेशा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के डैमेजेस में एक डाल देना. कहां डालोगे बताओ? आप कोई डाउट? आप कोई डाउट? किसका? What constitute reasonable compensation under ICA?
रीजनेबल कॉम्पेंसेशन अभी हमने पढ़ा, कहाँ आता है, कहाँ आता है 73। कॉम्पेंसेशन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कहाँ पेमेंट हो सकता है 73, तो तुम्हें 73 को ही समझाना है यहाँ पे। ये मैंने देखो जो तुम्हें यहां तक समझाया है ना, ये जो है ये भी हमने ये डिस्कस किया ए। अब डिस्कस व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ रीजनेबल कॉम्पेंसेशन, ये आ जाएगा बी। तो रीजनेबल कॉम्पेंसेशन में सेक्शन 73 समझाना है। और फिर देखो हार्डले वर्सेस बैक्सेंडल, एप्लीकेशन टू दिस केस मैंने कल बताया था। मिस रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा मैंने कल बताया था ना, मिस रिप्रेजेंटेशन टू दिस अफेक्ट, फ्रॉड टू दिस अफेक्ट। तो इधर तुम क्या लिंक कर रहे हो, इधर तुम क्या लिंक कर रहे हो, एप्लीकेशन टू दिस केस। तो क्यों कोई नंबर नहीं देगा। अच्छा कल मैंने किसकी कॉपी पढ़ी थी जिसमें बीच में लिखा था, बीच में लिखा था केस का नाम, आसान आसान देखो, केस लॉ मैंने कैसे लिखा है, केस लॉ लिखा कोने पे, कॉलन बनाया, इन हार्डले वर्सेस बैक्सेंडल it was established that damages must be foreseeable and arise naturally। तो मैंने क्या किया, लिंक करा। तो जो तुमने लिखा था ना लीडिंग केस हार्डले वर्सेस बैक्सेंडल और नीचे एक लाइन लिख दी, वो बड़ा लिंकेज ही नहीं था उसका मेन क्वेश्चन के साथ। अच्छा ओके आई अंडरस्टैंड, ठीक है ओके नो प्रॉब्लम। देखो इट डिपेंड्स अपॉन यू, बट वॉट एवर आई हैव सीन एंड गॉन थ्रू द पेपर्स, इट रिक्वायर्स अ लिंकेज। अगर तुम अब्रप्टली बीच में लीडिंग केस और केस का नाम डाल देते हो तो वो बड़ा ही अब्रप्ट हो जाता है, ऐसा लगता है एकदम से कहां से आ गया। राइट आई अंडरस्टैंड, ठीक है। क्या एग्जैक्टली exactly. देखो केस लॉ हमेशा कंक्लूजन के बिल्कुल ऊपर आएगा, केस लॉ बिल्कुल कंक्लूजन के, केस लिख दो। हाँ तो यही तो किया है हमने इधर भी, एग्जैक्टली सजेस्टेड केस लॉज नहीं, रेलेवेंट केस लॉज। अरे तुम एक क्वेश्चन के साथ एक केस भी लिख दोगे ना तो भी पास हो जाओगे सर जी। अभी अभी अच्छा सुनो, चलो डिस्कस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस of contract and injunction as equitable remedies under ICA. In what circumstances would a counter court prefer this over awarding damages? बताइए क्या लिखेंगे इसमें। Guys sitting online can also, guys sitting online can also, guys sitting online can also comment their respective doubts. Guys sitting online can also comment their respective doubts please। Guys sitting online can also have their respective doubts, yes चलो डिस्कस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजंक्शन एज इक्विटेबल रेमेडीज अंडर आईसीए। पहले ये बताओ कहां पे ये रेमेडी है, ये रेमेडी कहां पर है, प्लीज ये मत बोला ये रेमेडी पता नहीं हमें कहां पर है। अरे रेमेडी कल पढ़ी थी हमने, कहां पढ़ी थी, हाँ अरे ये रेमेडी पढ़ी थी ना हमने कल। सही तो बोल रहे हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कितनी रेमेडी पड़ी थी, 5। उसमें से पहली रेमेडी कौन सी थी, डैमेजेस। 3 रेमेडी कहां पे थी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। पहला कौन सा था, पहला कौन सा था, रिसेशन। फिर क्या था, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। फिर क्या था, फिर क्या था, कॉन्डम मैरिएट। ठीक है तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आ रही है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन के बारे में आपको इधर पूरा की पूरा लिखना है विद एग्जांपल एंड द कंक्लूजन। क्या
ये 6 नंबर का है और ये मेरी इस पे कॉपी है। तुम लिखोगे तो तुम इसका 60% लिखोगे। जब 100% पढ़ोगे तो 60% लिख पाओगे, पढ़ोगे 10% तो लिखोगे 100% कैसे? तुम्हें अगर लिखना 100% है तो तुम्हें 200% पढ़ना पड़ेगा, तो 100% लिखोगे। तुम ये मत समझना कि 4 पेज पढ़ ले तो 4 के 4 तुम जो पढ़ रहे हो वो लिख के आ जाओगे, 4 में से तुम 1.5 लिख के आओगे, क्योंकि याद इतना रहता है। बताओ क्या बोल रहे हो? हाँ बताओ, एनीबडी एनी डाउट? एनीबडी एनी डाउट? एनी डाउट्स प्लीज? क्या सैटरडे का पेपर मैं करके दूंगी, मैं कमेंट्स ऐड कर रही हूँ उसमें। समझ लिया? अच्छा समझना है अभी, रुको समझा रही हूँ। सैटरडे वॉज सेकेंड, थर्ड का ही तो पेपर, थर्ड का पेपर। अरे एक सेकेंड रुको, आई जस्ट चेक। सैटरडे दैट वॉज 9th। 9th तो मैं हटा रही हूँ कॉर्ड, हटा रही हूँ। नाइन थर्ड का पेपर, मतलब तुम्हें समझना है। कल हमने किया था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही था, कर लेते हैं। मेरे को एक बात बताओ अभय, मैं तुम्हें कैसे देखो, पहले तो 2 पेज अलग, ठीक है, उसके बाद सिर्फ नाम, ना नंबर ना बैच का नेम, ठीक है। मुझे कभी कोई कांटेक्ट करना पड़े कि पूछने के लिए, तो मैं कैसे करूंगी? ठीक है, बैच का नाम, अपना खुद का नाम और नंबर और स्टेपलर भी प्लीज। मतलब आप तुम लोग समझो कि वो जो KG1 का बच्चा होता है वो स्टेपलर उसके पास है, कर लो। तुम स्टेपल भी करके लाइए अपना पेपर अगर चेक कराना है तो। एंड प्लीज गिव मी योर पेपर ऑल्सो, गाइज गिव मी द पेपर हु आई वांट टू सबमिट एंड यू विल सबमिट टुमारो। यू गाइज विल सबमिट टुमारो, आप भी सबमिट करेंगे। एजेंसी का सेक्शन क्या था? 158। अच्छा, एजेंसी का सेक्शन क्या था? एजेंसी का सेक्शन क्या था? श्योर? चलिए, बट आज के थोड़े से क्वेश्चंस बेहतर है, आज बहुत इंप्रूवमेंट है। श्रेया का तो वैसे ही अच्छा था, नो डाउट। दिस इज योर राइटिंग, गुड, वेरी नाइस राइटिंग, वेरी नाइस। और तुमने मुझे एक क्वेश्चन लिख के दिया है, पहला वाला क्यों नहीं आया? तुम्हारी राइटिंग अच्छी है। चलिए गाइस, गाइस सुनिए एक बात, ये देखो, with respect to Kabir's doubt, define performance of contract, explain who can perform a contract under ICA। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने पूरी एक स्लाइड पढ़ी थी, आई डोंट नो यू केम दैट डे और नॉट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन किया, 2 टाइप के होते हैं, एक्चुअल या अटेम्प्टेड। हु कैन परफॉर्म, वही प्रॉमिसर, उसका एजेंट, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जॉइंट प्रॉमिसर और थर्ड पर्सन। ये तो लिखना है, ये लिखा है कंक्लूजन। सॉर्टेड? सॉर्टेड, ठीक है। चलिए, we will just go with the parting note and end the class today. Yes.
अच्छा अभी थैंक यू सो मच फॉर सेइंग थैंक यू। ओके सो बेसिकली आज का क्लियर है, कंटीजेंट कौन है और कंटीजेंट कौन है और वेजरिंग। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक। इस वीक में कंप्लीट करा दूंगी कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सोगा। ठीक है, नाउ विद द पार्टिंग नोट, अ फीलिंग दैट इज क्रिएटेड विद इन यू and by you, no one else can construct it and hand it to you. So if you guys are unhappy, stay happy because you guys are responsible for your happiness on your own. Nobody else is responsible. Stay happy, be cherishing, be blissful. Study as if you want to clear the exam, but do not make your life, it's just the part of the life. Life continues and goes on. ठीक है, people sitting online, if you guys have any doubt with respect to anything, and if you guys need to contact us, you can contact us on the given number, and you can also visit our physical campus. ठीक है, चलिए, thank you so much for joining in, take care. So